In the second session, we have seen how to approach in the cases of asthma. There was a guidelines given by Dr. Praful Vijayakar sir, which shows some clues how to approach in the cases of acute asthmatic attack and as well as the chronic chronic bronchial asthma. The patient may comes to us most of the time might be in the acute exacerbation of chronic asthma or in the state of chronic asthma where the patient is mostly asymptomatic. But in the acute exacerbation, you can get all the symptoms, all the physical finding, examination finding positive, where you have to give the relief to the patient within a short period of time. Might be within a half an hour, might be within a 1 hour, 2 hours, because there was a lacking in oxygen and patient has the suffocation or breathlessness, where the patients develop the fear of death. That's why most of the time, even when I advise them to reduce or to taper the inhaler, है ना, जो inhaler doctors prescribe करता है एलोपैथिक, तो they afraid to reduce that. तो वो कैसा है कि नहीं, वो जैसे उनके डोज रहते हैं सुबह शाम, वैसे ही मोस्टली काफी बार पेशेंट अगर एंशियस है, फियरफुल है, तो डोज लेते हैं. बट व्हाट वी नीड टू एडवाइज देम इज टू take that inhaler or rotacap when you feel the more severe symptoms. Because once we prescribe or similimum, the intensity of the episodes and intensity of symptoms become reduced. So patient may have experienced the shortness of breath, slight wheezing, right? Or cough, but the intensity is very less. If the patient taken the rotacap at the starting point of the complaints of episode, then it is difficult to differentiate whether our remedy is how much acted or not. How much acted or whether it is acted or not. So the most important point to understand or explain the patient is to take the rotacap whenever it is very, very essential. Right? Sometimes the patient who is the don't want to take that rotacap anymore, leave or stop themselves as they feels better. बराबर है कि नहीं? जैसे केस आपको समझाऊंगा. The today's discussion is over the Natrum group, but I have take one case which was I given as an assignment, I think 3 weeks before. So many people's, most of the doctors, practitioners share their understanding working on that case, but still many group members are was not share their cases, because when you attempt to solve such cases or whatever any other cases, we learn more, because we are finding the answer to the question, we are finding the mental state, we trying to find the disposition of the patient, we trying to find the diagnosis of the patient, we trying to understand the pathology of the patient. Right, where there is a we understand the disease diagnosis, miasmatic understanding, and the person understanding. Right, so unless and until we attempt to do that, then the learning will not be a maximum. क्योंकि मैं जब यहाँ पे केस प्रेजेंट करता हूँ, तो दिस इज माइट बी माय अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द केस. बराबर है कि नहीं? So go through the case. We have the two different I have to present the two different topic. One is the case and second is the Natrum group. So I have to finish this case as within a short period of time. So I am little fast in finishing this case because I have already provided the material of this case.
Right? So this is the 58 years male who is 10th plus ITI, working in the company, married, living, residing in the Gonthiri, Nagpur, having the one son, two daughters. The date of case taking was April 2023. Now, whenever any case you see or I have to present, we have the enough follow. See, try to understand whenever anyone in the seminar or any presenter presenting any case that has the enough follow-up that shows the patient feels fully better. See, one follow-up where the patient saying, Ki, I am feeling better is not enough to understand the reverse of the pathology or to minimize or to normalize the sensitivity of the patient, right? So that's why the proper 4 to 6 follow-up is very essential to understand the things. 1 minute. So there is some now if you see further, the symptomatology is presenting in the form of there the patient start with the sneezing, coryza, then there is a tenacious thick discharge which is accumulated in the throat, with there is a shortness of breath and cough, where there is a rattling and there is a wheezing sound. There is a wheezing sound which is aggravated on the change of weather, aggravated by dust and aggravated by cold. Patient taking the allopathic, this is since 6 years. This happened since the 6 years. The patient suffering is since the 6 years. So that they are taking the allopathic medicine whenever the complaint aggravated. So the patient is on the Forquat, Almazest, and Lupicide. With this, the patient having the severe constipation where the stool is hard, unsatisfactory, and patient has to take the laxative to defecate. Right? Patient also having the lumbar pain. Patient also having the on and off joint pain, which is aggravated in the damp weather, which is not mentioned here, which was patients told in the follow-up. The family history is even very important to understand the depth of the miasm or depth of the disease or predisposition. बराबर है कि नहीं? The patient is already we have the diagnosis, patient having the bronchial asthma, patient having the severe constipation, right? Past history, patient having the pulmonary coughs with the pleural effusion. So the lungs is always already affected with the coughs, granuloma, right? So there was a strong history of psychosyphilis. Father is having the smoker bronchitis. Father is having the bronchial asthma, tuberculosis, constipation, all this. Whatever the patient having, the it is genetically transferred from the father. So it is said that and it is observed that the disease which is comes from the family, genetically transferred, and it is quite difficult to treat. Mother is also having the bronchial asthma. Mother is also having the TB, pulmonary TB, and she had an hypertension. See the strong family history of the similar type of the disease. You can get the psychotic disease, you get the psychosyphilitic disease. Patient addiction, history, kharra, pan, tobacco chewing. But after the doctor's advice, past doctors, the patient stop that, all these things. जनरल में नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक है वही मैं ये करता हूँ. हिस्ट्री ऑफ साल्ट, हिस्ट्री ऑफ क्रेविंग साल्ट, बट इट वाज स्टॉप बिकॉज ऑफ द डॉक्टर ने बोला था इसलिए क्योंकि नमक ज्यादा खाना हानिकारक होता है, तो पेशेंट ने उसको छोड़ दिया है. पेशेंट हैविंग द नेचुरल एलिमिनेशन स्टूल चिप कंप्लेंट में है, यूरिन पर्सपिरेशन, ठीक है. स्लीप, देयर इज अ स्टार्टल स्लीप ड्यूरिंग, पेशेंट बिकम स्टार्टल विद सफोकेटिव फीलिंग. The startle and suffocation might be fear of suffocation or might be because of the bronchial asthma. Patient, because of the bronchial asthma,
patient feel the suffocation or shortness of breath after sleep or after lying down, right? If you see the sensitivity of the patient, there is a sun sensitivity. The patient is sensitive to sun exposure. Thermality, patient, you can see the patient is sensitive to both heat and cold, and having the whenever there is a sun heat aggravation, draft of air aggravations, damp rainy weather aggravation, change of weather aggravation, all this damp weather, change of weather, AC always gives rise to a increase of respiratory complaints. Physical examination, if you see the BP is 130, BP was 130/80, and on RS examination, because the complaint is cough, wheezing, right? You have to examine the chest. If you examine the chest in the bronchial asthma patient, you definitely give the bronchi. So, because you have to observe this, you have to find this, you have to write down in your paper so that in the follow-up, whether it is after 2 to 3 days or 1 week, you examine and see is there any change in the examination finding, right? Sometimes it is said that the patient cough is reduced, but when you examine the chest, the bronchi still remain as it is. So, with the symptomatology, the examination finding must be nil or reduce comparative to the symptoms. If you see the investigation, patient a PFT pulmonary function test is positive for bronchial asthma. The patient also having a TMT positive, that is the exercise induced IHD, ischemic heart disease, where you can say the patient having the inadequate blood flow to the coronary artery or heart. That means the patient might have coronary artery disease in the form of blockage. On angiography, there was a blockage, but mild in the LAD 30% only. So there is no need to much worry, but the TMT is positive to we have to take into the consideration. And PFT is also positive for the asthma. You can see the reports where the patient taken treatment 1 and 2 years back. It's reports of 8 March 2021, where the prescribed for allergic rhinitis and asthma. 22 February 2021, where the patient having the breathlessness with chest tightness, hypertension was there. 2021 October and 2021 में 2 से 3 prescription है, where the patient having the wheezing, cramps, positive bilateral bronchitis, asthmatic bronchitis, that time was diagnosed. This is the recent reports, 6 January 23, where the patient have wheezing, pneumonitis was there, suspected of pneumonitis and bronchial asthma too, and patient diagnosed known case of hypertension with acute exacerbation of asthmatic bronchitis. That time also patient has taken the treatment, and now in the in this I think before patient shown me 1 से 2 महीने पहले भी दिखाया था ये इसमें 26 March 23, 26 March 23, where the patients जो डायग्नोस किया था वो हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, टीएमटी पॉजिटिव पहले से एंड ब्रोंकियल अस्थमा इज द नोन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. So Forquat was given. So all the medicine which is useful for the bronchial asthma and all this hyperlipidemia and hypertension was prescribed. Now I think already you have gone through the life space, so I don't want to read this life space. I directly jump to the analysis part. Might be some peoples are new,
So I read this life space fast. Try to understand this. एकांत वातावरण पाहिजे. अलोन प्रिफेर. आवाज असेल तर चिडचिड होते. I have converted into the Hindi so that all the peoples understand properly. So patient को कैसे एकांत चाहिए, आवाज नहीं चाहिए. वो- he prefers specially alone, don't want the company. बट किसी ने अगर उसको सुना नहीं, तब बहुत चिड़चिड़ और बहुत गुस्सा आता है. मतलब वो बोलने गया और किसी का ध्यान नहीं है. मतलब वो बोल रहा है और कोई उसको इग्नोर कर रहा है. दैट मीन्स व्हाट दिस इंडिकेट द सेंसिटिविटी ऑफ द पेशेंट एग्रावेटेड बाय इग्नोरेंस. अगर उसको लग रहा है, माइट भी वो इग्नोर नहीं कर रहा है, बट दिस सेंसिटिविटी इज सो हाइटेंड कि उसको जब लगेगा कि ये मेरा सुन नहीं रहा, तो पेशेंट बिकम्स हाइपर, गेट्स इरिटेट, ही वॉन्ट द रेज. पेशेंट बाद में बताए कि अगर किसी ने सुना नहीं है, बोल रहा हो, तो इतना गुस्सा आता है तो मार देता हूँ. सी द सेंसिटिविटी. एंड नाउ दिस सेंसिटिविटी the patient built since childhood, because sensitivity never change. ये बचपन की सेंसिटिविटी, बट द रिएक्शन टू सेंसिटिविटी चेंज. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बचपन में या बच्चा होगा ये, बराबर है. अभी तो 50-60 इयर्स का मेल पेशेंट है, तब भी सेंसिटिविटी टू इग्नोरेंस, सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, ये सब होगा. बट उसका रिएक्शन उस समय ये नहीं कि पेशेंट को बहुत गुस्सा आएगा, हो सकता है कि चिढ़ जाएगा, सिर्फ इरिटेबिलिटी, सोरिक एक्सप्रेशन बताया हूं. बट अभी इतना गुस्सा रेज में आ जाता है कि मार देता है. तो यहाँ पे सिफिलिस के तरफ जा रहा है. सेंसिटिविटी रिमेन्स द सेम, बट द रिएक्शन टू सेंसिटिविटी change according to the underlying mechanism. That's why it is very, very important to understand the sensitivity of each patient or each person. This gives the basic soil and basic nature of the person. एक गोष्ट 10 वेळा, एक ही बात अगर 10 बार बताओ, एक ही बात वो बार बार बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाले को समझा ही नहीं है ना. अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो फिर से हाइपर होता है. उसको लगता है इसको समझा ही नहीं है. मतलब वो अटेंशन नहीं, मतलब इसका क्या सेंसिटिविटी कि वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है. तो पेशेंट इज इगोइस्टिक, पेशेंट हैज द प्राइड. उसको लगता है कि सामने वाला नहीं रिसीव कर रहा है. माइट बी देयर इज इनर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट गिव्स राइज टू सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. कोणाला किसी को बताया और उसने सुना नहीं, तो हाइपर हो जाता है, वो हावी हो जाता है उसमें, इवन दो मारने को भी दौड़ता है. कंपनी में भी जैसे लड़के हैं, एम्प्लॉयज है, उनकी गंदगी, ऐसे कोई बिहेवियर उसको पसंद नहीं आता. सब साफ सुथरा चाहिए. पेशेंट इज वेरी रिजर्व एंड इंट्रोवर्टेड. अगर मेरा सुना नहीं और या गलत बात किया, है ना, अगर झूठ बोल दिया, तो पेशेंट को चिड़चिड़ बहुत होती है. इतनी चिड़चिड़ को वो मारने को दौड़ता है. अधिकारी, सपोज अगर अधिकारी होगा तो थोड़ा सा कंट्रोल करता है, बराबर. पर पर उसमें भी उसको चिड़चिड़ होती है. अगर अधिकारी ने या बॉस ने कुछ बोल दिया और बोल नहीं पाता, तो अंदर गुस्सा रहता है, एंगर रहता है, इंडिग्नेशन रहता है, और ब्रूडिंग करता है काफी दिनों तक. इससे नींद भी उसकी डिस्टर्ब होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन एंड द कोर ऑफ द केस और कोर ऑफ द पर्सन. बिकॉज एवरी पेशेंट में जरूरी नहीं है कि हमको रेपर्टराइजेशन करना जरूरी है. रेपर्टराइजेशन करके ग्रुप ऑफ मेडिसिन लाना और फिर उसको डिफरेंशिएट करना. If you find you can understand the core, you can understand this disposition and sensitivity itself in the life space. And if you come to the one remedy and rule out the other remedy, then you can directly prescribe. तो ये केस ऐसा ही है. मैंने इसमें रेपर्टराइजेशन वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्टली मुझे लगा कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन remedy or group, and then I differentiate with the other shades of that group and finalize the remedy. फियर पूछा कुछ ऐसा डर है क्या, तो डर ऐसे कुछ खास नहीं था.
प्रोग्राम को वगैरह जाता है, थोड़ा व्यवहारिक या सोशल है, पर एक बार बोल दिया तो हो गया। समय का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है समय को। और गुस्सा भी आता है अगर कोई लेट हो गया, उसको चलता नहीं है ऐसा, कोई लेट वगैरह होता है। साफ सफाई बहुत पसंद है, घर में भी साफ सफाई, अगर घर वालों ने साफ सफाई नहीं की तो चिड़चिड़पना होता है। और उसके मन जैसे नहीं हुआ, किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया या मन के विरुद्ध हुआ तो बहुत गुस्सा आता है। इसलिए उसको सब परफेक्ट चाहिए, जैसा है वैसा, जगह पे ही चाहिए, सब साफ सुथरा चाहिए। जब मैंने पूछा कि कुछ चिंता है क्या लाइफ में, या अभी कोई चिंता चल रही है ना, कुछ टेंशन है, तो उसने बताया कि दो डॉटर है, उसको दो लड़कियां है। वन गॉट मैरिड, एक शादी हो गई, और दूसरी जो है वो पढ़ रही है। बट वो भी अभी, उसको भी बीमार हुई थी, तो टाइफाइड हुआ था, तो वो एडमिट थी, तो उसकी चिंता थी कि बा बीमार हो गई, टाइफाइड हो गई, टाइफाइड हो गया उसको। फिर पूछा कि कुछ मन में कोई दुख है क्या, मन में कोई दुख है क्या। दिस इज द बेसिक इमोशन वी हैव टू इवेल्युएट टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। माइट बी द वे द आई एम आस्किंग, आपका वे थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट द ultimately what I have to understand, we have to understand the personality, we have to understand the sensitivity, we have to understand the mental state and the disposition. बराबर। कई दुख, अति दुख, मतलब बहुत दुख होता है मुझे अगर कोई मेरे पास का गया तो। बहुत मन को लग जाता है, बहुत मन को दुख होता है अगर कोई पास का गया, डेथ हो गया, दूर चले गया। मैं मन को बहुत लग जाता है, मतलब हर्ट हो जाता हूँ, मतलब ऑफेंडेड फीलिंग बहुत जल्दी आ जाता है। किसी ने अगर कुछ बोल दिया, कुछ ने किसी को इधर बोल दिया तो हर्ट जल्दी होता है, तो वही वही चीज मैं बार बार ब्रूड करता हूँ। और पुरानी बातें भी ज्यादा माइंड में चलते रहती है, पुराने बातें भी माइंड में चलते रहती है, वही वही सोच। तो मेरा पुतना, मतलब वो जो भाई का लड़का, उसकी डेथ हो गई, तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसको इंसोम्निया डेवलप हो गया, वो सो नहीं पाता था, स्लीपलेसनेस डेवलप हो गया। तो स्लीपलेसनेस आफ्टर ग्रीफ, इमोशनल बहुत हूं मैं, हर्ट जल्दी हो जाता है, काफी सेंसिटिव हूँ, और इजीली सैड और डिप्रेस फील होता है। अगर बॉस ने कुछ बोला तो कैसा, क्या होता है, बॉस ने अगर कुछ बोल दिया, डांट दिया, कुछ गलती निकाल दिया तो क्या होता है, दिस इज माय क्वेश्चन। तो वही वही सोचता हूँ। बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, गुस्सा तो आता है पर दबा देता है। पर थोड़ा डर भी लगता है कि ऐसे कुछ गलती हो जाएंगी, या बोल दूंगा तो बाहर निकाल देंगे। व्हेन समवन हर्ट मी, मतलब कोई अगर हर्ट करता है तो मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ या अवॉइड करता हूँ, या बात ही नहीं करता, क्योंकि गुस्सा रहता है मेरे मन में उसके प्रति। तो दिस इज द एंगर विथ हेट्रेड फीलिंग। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, एंगर, इरेसिबल एंगर, इजीली इजीली गेट्स एंग्री। ऐसे सब लोग भी उसको बोलते हैं कि बहुत गुस्से वाला पर्सन है करके, बट रिजर्व है, पर गुस्से वाला है। तो ये 15 हाइपरटेंशन था 15 साल पहले, ये ब्लड प्रेशर जो डायग्नोस हुआ उसको 15 साल पहले। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये समझना जरूरी है कि 15 साल पहले ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ये समझना जरूरी है। बराबर है कि नहीं। अगर हमको ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, हमको अगर ब्लड प्रेशर ठीक करना है, उसके मेडिसिन बंद करना है, तो 15 साल पहले क्या हुआ था, तो वाइफ को जॉब लगने वाला था, और उसके लिए वैलिडिटी चाहिए थी, कास्ट वैलिडिटी। और कास्ट वैलिडिटी उस समय मिल नहीं रही थी। तो अगर कास्ट वैलिडिटी मिलेगी नहीं तो जॉब इसको मिलेगा नहीं, जॉब चले जाएंगे। तो उसको उसकी टेंशन थी और चिंता थी, और वो वैलिडिटी नहीं मिल रही थी, वो इधर से उधर भाग रहा था। तो वो अधिकारी या लोगों के प्रति गुस्सा भी था उसको मन में कि अरे नहीं हो रहा है, एंगर, इंडिग्नेशन, इस तरह का। क्योंकि ये भी है कि अगर वाइफ लगी नहीं तो फिर अपने अकेले के भरोसे कैसा होगा। क्योंकि अभी जॉब चल रही है, मतलब वाइफ तब जॉब में थी पर वैलिडिटी चाहिए थी, तभी वो कंटिन्यू कर पा रही थी, ऐसा था।
तो अगर वैलिडिटी नहीं मिली और जॉब छूट गया तो जो लाइफ अच्छी चल रही है उसमें गड़बड़ हो जाएगा, पैसा लाइफ आना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको अब बीपी बढ़ गया था। तो उस चीज का बहुत इरिटेशन और गुस्सा और चिंता भी हो रही थी उसको। पेशेंट इंसल्ट फील जल्दी होता है, पेशेंट को अपमानित फील या इंसल्टेड फील। अगर कोई उसको कुछ बोल दिया, रूडली बोल दिया या कुछ, तो उसके सेंसिटिविटी देखो, इजिली गेट्स इंसल्टेड फीलिंग आता है। और बट अगर प्लानिंग देखे तो प्लानिंग काफी करता है, कुछ भी करना है तो उसके पहले प्लानिंग करेगा, कहीं जाना है तो उसके पहले तो कॉशियस काफी है ना, प्लान करके ही सब करता है। कल अगर ड्यूटी जाना है तो आज ही उसकी सब बैग वगैरह या क्या करना है, कौन सा काम करना है या कुछ रहा तो नहीं, ये सब प्लानिंग करके ही रखेगा पहले। रात को अगर कुछ बैग भरना है, कुछ वर्क फिनिश करना है तो पहले वर्क फिनिश कर देगा। So you can see the patient who is responsible also, who is conscientious also, who is perfect also. But at the same time, you can see the patient is highly vulnerable, highly sensitive and emotional, hurt easily, anger, rage, anger contradiction, anger repetition of thing, anger या डिल्यूजन की लोग मुझे समझ नहीं रहे, तो बार बार बताता है तो उसमें गुस्सा आता है। तो कहीं तो भी लोनली फीलिंग भी है। जहां हर्ट होता है तो वहां पे ब्रूडिंग भी होता है, ड्वेलिंग ऑन द पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंस भी है। और ग्रीफ भी, द पेशेंट गोज इजिली इनटू द ग्रीफ एंड देयर इज अ सैडनेस एंड डिप्रेस्ड फीलिंग। सो दिस ऑल गिव्स राइज टू अ ग्रुप, because some disease diagnosis this all gives rise to a understanding of remedy। अभी कौन सी है आप बताएंगे? कुछ केस जिन्होंने वर्किंग किया तो उनका एक दो रिमर्जिंग रेमेडी आई है, किसी ने ग्रुप को भी शो किया, तो दैट वाज द राइट थिंकिंग। किसी ने चार्ट किया है। हम्म। तो क्या रेमेडी हो सकता है? ग्रुप ऑफ रेमेडी केस एनालिसिस में अपन देखेंगे कि डिजीज डायग्नोसिस तो फिक्स है, ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, टीएमटी पॉजिटिव, दैट मींस द आईएचडी, इश्केमिक हार्ट डिसीज। अस्थमा, when patient comes to with the asthmatic attack, it's a psoriasis या psychosyphilis. Hypertension psychosis, hyperlipidemia psychosis, because there is a increased lipid. This TMT positive IHD because of the obstruction, fatty deposition, it is also a psychosis। बराबर है। तो मिक्स साइकोसिस केस है या साइकोसिफिलिस प्लस साइकोसिस प्लस साइकोसिफिलिटिक केस है। लाइस्पेस एनालिसिस में वही रेज कॉन्ट्राडिक्शन पर इम्पेचुअस है ना, एकदम सडन और फोर्सफुली, मतलब गुस्सा आया तो रिएक्ट कर देगा। दिस इज द इम्पेचुअस, इवन यू गेट द इम्पेशंस, कोई समझ नहीं रहा है और किसी को बताए तो तुरंत उसका जवाब चाहिए। अगर उसने रिएक्शन नहीं दिया हाँ ना में तो और गुस्सा आ जाएगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ इम्पेशंस, इम्पेचुअस। But at the same time, perfectionist, conscientious, fastidious, sensitive, all this anxiety, future about humiliation, sensitive to humiliation. So the remedy that comes is the, can anyone share their view about the remedy? We have to finish this so that we go to the group study. ग्रुप मेंबर प्लीज, इतना बता दिया मैंने, पूरा एक्सप्लेन किया उसकी पर्सनालिटी, इंटरप्रिटेशन भी बताया। कौन सा मेडिसिन आ सकता है, कौन सा ग्रुप आ सकता है? नहीं, कुछ लीड नहीं है, Sir, कुछ नहीं। most likely it can be Natrum group, sir. नाइट्रम ग्रुप, ओके, वेरी नाइस।
मोस्ट लाइकली नाइट्रम ग्रुप। एनीथिंग, एनीवन? शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको लग रहा है कि भाई ये लाइकोपोडियम है तो लाइकोपोडियम आपको लग रहा है ना। और जब कोई दूसरी मेडिसिन आए तो आप बुक खोलना और उसको देखना कि लाइकोपोडियम पढ़ना, और फिर जो मेडिसिन आ रही है, जो ग्रुप आ रहा है, उसको पढ़ना। दैट डजंट मीन्स कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैंने जो प्रिस्क्राइब किया इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसा नहीं। आप अगर कोई रीजनिंग दे रहे हैं या आप बोल रहे हैं कि नहीं सर ये है, तो मे बी, बट अगेन द विनर, या फिर कौन कौन डिसाइड करता है कि रेमेडी इज राइट, इज द रिजल्ट। अभी अपन ऐसे ही केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें रिजल्ट है प्रॉपर। और रिजल्ट किस तरह से है, प्रॉपर है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो ये हम बोलेंगे कि रेमेडी ये राइट है। ऐसा अनप्रिंसिपल्ड या हैपेजार्ड रिजल्ट होगा, या इनएक्यूरेट रिजल्ट होगा, या शॉर्ट पीरियड के लिए रिजल्ट होगा, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज एब्सोल्युटली राइट। देन इट इज अ पार्शियल राइट। अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी, egoistic nature, pride, है ना? Though there is a responsible person, perfectionist person, conscientious person, the group of remedy comes is the nitram. Right? Now come to the pathology, come to the myism. Psychosyphilis plus pathology is the bronchial asthma. See again LSMC कि नाइट्रम तो है, तो अभी नाइट्रम में कितने रेमेडी है? नाइट्रम म्यूर है, नाइट्रम आर्स है, नाइट्रम सल्फ है, नाइट्रम कार्ब है, नाइट्रम फॉस्फोरिकम है, नाइट्रम सिलिकेटम है, नाइट्रम आयोडम है, और बोरैक्स है। अभी उसमें से कौन सा आएगा? अगर एलएसएमसी देखते हैं तो कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड बाय चेंज ऑफ वेदर, कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड बाय डैम्प, कोल्ड वेदर, सेंसिटिविटी, अगर सन सेंसिटिविटी देख रहे हैं, बराबर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर हम और भाई बहन का अगर ये करेंगे तो अगर उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है, देन कम टू द नाइट्रम सल्फ। सो आई हैव, with my core understanding, with the person understanding, I prescribe the natrum sulph. BD dose for 3 days patient, because the patient having the wheezing था, मतलब acute अटैक में आया था, है कि नहीं? अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक फेज में आता तो शायद मैं नेट्रम सल्फ 200 सिंगल डोज ड्रॉप देता, क्योंकि एक्यूट और क्रोनिक दोनों मैच हो रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि अभी अगर मोर डिस्ट्रेसिंग होता और एक्यूट टोटालिटी अगर मैं निकालता तो एक्यूट मेडिसिन देता और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देता। पर यहाँ पे दिख रहा है कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों सिमिलर सेम आ रहा है, या दोनों कवर कर रहा है एक ही ड्रग। सो आई हैव प्रिस्क्राइब इन द थोड़ा मल्टीपल डोज में। बीडी डोज फॉर 3 days मतलब 6 डोज हो गए, एसबीआर फॉर 2 weeks, बट आई हैव टोल्ड हिम, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रेसिंग नहीं था, नहीं तो बहुत डिस्ट्रेस में, जैसे वो लड़की चैताली का दिया ना, देखा था ना, दूसरे दिन या तीसरे दिन ही बुलाया था, या सुबह प्रिस्क्राइब किया तो शाम को फोन करने के बोला बोला था कि आराम हुआ है कि नहीं करके। मतलब एलोपैथिक मेडिसिन भी शुरू था, है ना, तो इसलिए उसको ज्यादा डिस्ट्रेस में नहीं था, कम था सब सिम्टम। पर 3 दिन था, उसके बाद वो बंद हो गई, तो फिर वो शुरू नहीं किया उसने, और अपनी मेडिसिन शुरू रखा। तो उसमें खांसी, वीजिंग जो था, एलर्जी कंपोनेंट्स था, सब ठीक हो गया। एक हफ्ते में पूरा कंप्लीटली आराम हो गया ऐसा उसका। अभी बोल रहा जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, जिसके लिए लैक्सेटिव लेना पड़ता था, वो प्रॉब्लम वैसा ही है। तो अभी अभी जब आया था पेशेंट तो थोड़ा सा डैम्प वेदर ही था जो एग्रेवेटिंग फैक्टर था, फिर भी पेशेंट को तकलीफ नहीं हो रही थी, एंड पेशेंट स्टॉप ऑल द एलोपैथिक मेडिसिन, है ना, रोटा कैप वगैरह सब बंद कर दिया था। तो दिस गिव्स द गुड पॉजिटिव साइन, द रेमेडी इज रजिस्टर्ड और एक्टेड प्रॉपरली। अभी कॉन्स्टिपेशन है तो अभी क्या मेडिसिन चेंज करना कॉन्स्टिपेशन के लिए, कि उसको ही कंटिन्यू करना? नो चेंज, राइट। सी कॉन्स्टिपेशन इज साइकोसिस, जो थोड़ा सा हायर माइजम वाला या हायर पैथोलॉजी वाला था, वो अगर रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। अभी हम
मेडिसिन एक्ट हुई है तो हमको समय देना पड़ेगा, हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। धूप में जैसे समर में उसको इचिंग होता है स्किन में, बट विदाउट इरप्शंस, तो वो भी प्रॉब्लम है, तो वो भी है, मतलब प्लस है, गया नहीं है कॉन्स्टिपेशन। बट अस्थमेटिक पार्ट जो था, जो तकलीफ वाला, वो ठीक हो गया। आई हैव गिवन द एडवाइस him to don't apply the external ointment or any medication. Don't take any medication. तो पूर्ण बरा एलोपैथी टोटली बंद केला है, स्किन इचिंग थोड़ा कम हुआ पर होता है, चेस्ट पेन नहीं है ना। तो इसमें एसएल दिया है, ठीक है। अगर कुछ सिम्टम्स, डैम्प वेदर है पर ये अस्थमेटिक सिम्टम्स अगर होते, थोड़ा ही कम होता, तो शायद नाइट्रम सब का डोज रिपीट करता। पर जो तकलीफ वाला पार्ट था वो टोटली ठीक है। मेडिसिन बंद करने के बाद भी, एडवर्स वेदर इन्वायरमेंट रहने के बाद भी पेशेंट को तकलीफ नहीं हो रहा है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, आई हैव प्रिस्क्राइब द एसएल ओनली फॉर 2 वीक्स। ये आफ्टर 2 वीक्स का है ये। अभी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिपेशन था, जिसके लिए वो लैक्सेटिव ले रहा था डेली, उसके बिना होता ही नहीं था, तो वो अभी लैक्सेटिव बंद किया है और थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, स्टूल में अपने आप हो रहा है। फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है अभी भी, बट अनसेटिस्फैक्ट्री है, पर विदाउट लैक्सेटिव ही कैन डेफिकेट, और दैट मीन्स द कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो इम्प्रूव, स्किन कंप्लेंट इज ऑल्सो इम्प्रूव, बट he expressing the joint pains like। मग सकाळच्या पहले बोला था कि जो लैक्सेटिव है उसको अल्टरनेट दे लो 15 दिन बाद जब आए थे, तो अभी वो टोटली बंद कर दिया, फिर भी लैट्रिन होता है, पहले होता ही नहीं था। सो दिस इज अ गुड मॉर्निंगला पॉजिटिव ड्युटीला जे बाहेरचं टॅबलेट होतं 4 पॉईंट वगैरे तेही बंद साइन। झालंय ना. म्हणजे नाही, ते सर्व बंद झालं. बंद कोणतंच झालं. औषध बाहेरचं नाही, आयुर्वेदिक फक्त औषध माझं नाही. बीपीचं औषध आणि सुरू आहे. ते सर्व सुरू आहे, आहे. बाकी काही नाही. ठीक. नवीन त्यात काय म्हटलं, खाज येत आहे तुम्हाला? आणि सायंकाळला हम्म. रात्रीला खाज येतो. हा. आणि हे जॉईंट पेन आहे का नाही, हे हम्म. जॉईंट 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 सांधे जॉईंट पेन कधीपासून दुखायला लागले? हे 8 दिवस झाले. तर मी घेतल्यानंतर मग औषध घेतलं, त्याच्यानंतर 8 दिवसानं चालू झालं होतं जॉईंट पेन. हे क्लायमेट चेंज झालं ना. होते का असं? नाही, असं तर नाही होत, ते आता चालू झालं एवढ्यामध्ये. ओके. तर आता जेव्हा सुरू झालं तर आता कमी झालंय आज? नाही, आहे वाढलंय? जॉईंट, नाही आहे जॉईंट आहे. कधी जाणवते ते दुखणं आहे म्हणून? दुखणं आहे सकाळी उठल्यानंतर, कधी कधी कामावर असताना त्रास होते, मग कधी कधी अकडल्यासारखं. तुम्ही तो ये जॉइंट पेन था उसको, डैम्प वेदर में होता था, बाद में फॉलोअप में फिर उसने बताया कि थोड़ा बहुत होता ही था। तो अभी फिर से अभी 1 हफ्ते बाद थोड़ा बढ़ गया क्योंकि डैम्प वेदर था कर। तो इसमें अभी स्किन इचिंग है थोड़ा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इम्प्रूव हुआ है, स्टूल इम्प्रूव, गैसेस फुलनेस इम्प्रूव, म्यूकस एक्सपेक्ट्रेशन बेटर, अस्थमेटिक रेस्पिरेशन एकदम बेटर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है। जॉइंट पेन है, डैम कोल्ड वेदर से बढ़ता है। अभी इसमें हम एक्यूट टोटलिटी निकाल के मेडिसिन दे सकते हैं, बट इफ यू फील द रेमेडी इज राइट एंड देयर माइट बी द ओल्ड रिपरकशन ऑफ द सिम्टम्स, एंड नाइट्रम सल्फ ये कवर करता है कि जॉइंट पेन एग्रेवेटेड बाय डैम कोल्ड वेदर। सो हम मेडिसिन चेंज न करते हुए, नहीं न देते हुए, हम एसएल देके पेशेंट वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो एसओएस मैंने रस्टॉक्स दिया था, देखो कि 3-4 दिन में, 4-5 दिन में बताना कि अगर जॉइंट पेन में कुछ इंप्रूवमेंट होता है नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो फोन करना, दैट टाइम आई विल थिंक कि वेदर आई हैव टू गिव द रस्टॉक्स और नॉट। तो तभी भी एसएल दिया, बीपी नॉर्मल है ना, पर एब्डोमेन सॉफ्ट है, आरएस क्लियर है, ठीक है ना। रस्टॉक्स एसओएस दिया है। तो इसमें ये फॉलोअप में था कि अस्थमेटिक कंप्लेंट या अटैक नहीं है, स्टूल एकदम थोड़ा अनसेटिस्फैक्टरी पर इम्प्रूव हुआ है, और इम्प्रूव हुआ है, लैक्सेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जॉइंट पेन जो था वो बेटर है, माइल्ड थोड़ा सा नी पेन है। तो यहाँ पे भी एसएल दिया, ये थर्ड फॉलोअप है। फोर्थ फॉलोअप में देर वॉज अ गैप ऑफ 2 वीक्स बिकॉज द पेशेंट फील्स मच बेटर, नो अस्थमेटिक कंप्लेंट। कभी कभी थोड़ा सा एक्सपेक्टोरेशन आता है, गैसेस काफी कम है, फुलनेस इन एब्डोमेन स्लाइट है, बीपी एकदम नॉर्मल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीपी का टैबलेट शुरू था उसका,
और वेदर फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो एक डोज फिर एक डोज रिपीट किया, सिंगल डोज। माइट बी वी कैन वेट एंड वॉच, पर एक दो वीक्स का गैप हुआ था पेशेंट को, और बीपी का टैबलेट एक ये था कि उसको स्टॉप करना था। तो वो कंसिडरिंग दैट आई हैव गिवन द 1 डोज ऑफ नाइट्रम सल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। तो उसके बाद जब आया 17/6, फिर 29/7, 17/6, बाप रे, काफी गैप के बाद आया फिर से पेशेंट। तो थोड़ा सा सर्दी और छींके। नाउ स्नीजिंग एंड कोराइजा इज द इरिटेशन ऑफ म्यूकोसा इन द नोज, है ना। अस्थमा क्या है, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स का डिसीज है। पैथोलॉजी कहाँ पे होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म होता है, और म्यूकस सिक्रेशन होता है। तो इनर वाइटल ऑर्गन से आउटर के तरफ सिम्टम्स है, स्नीजिंग कोराइजा, बर्निंग सेंसेशन। सो नो नीड टू वरी, बराबर है। पर अगर सिम्टम्स ज्यादा है तो वी कैन प्रिस्क्राइब द acute medicine, but we have to see the relationship between our constitutional medicine and the acute medicine we prescribe. So if there is a sneezing or not because the patient also having the allergic rhinitis, है कि नहीं, तो arsenic album 3 hourly 2 days and followed by the constitutional remedy natrum sulph 3 doses, क्योंकि ये सर्दी छींके भी आना नहीं चाहिए, दो देर इज अ चेंज ऑफ वेदर और एनी एडवर्स कंडीशन। तो बाकी 2 वीक्स का दिया है, उसमें फॉलोअप म्हणजे में अशी जी आता दिसते पण वर्ष झाली त्याला 40 वर्ष ती एकाची कमी झाली होती काही कंपनीमध्ये एकाची त्या धाब्याचं तो पेशेंट बेटर है, कोराइजा भी ठीक है, अस्थमा भी ठीक है। ओकेजनली स्टूल अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इवन स्टूल इज सेटिस्फैक्ट्री, मतलब एब्डोमिनल कंप्लेंट्स भी बेटर है। और एक दो फॉलोअप के बाद उसका उसने बीपी के टैबलेट कम करके देखा, बंद करके देखा, एक्चुअली मैंने इसमें मेंशन नहीं किया शायद। सो कफ वाट जीरो इन द consecutive follow-up, no hoarseness, no asthmatic complaint, SL was given, no cough, no asthmatic complaint, but occasionally there was a sneezing, occasionally, but no episode of severe allergic rhinitis like a sneezing, like a coryza, बराबर है कि नहीं, like fever, headache, all this. So अभी भी एक दो फॉलो आए थे, पर वो ऐड नहीं कर पाए क्योंकि इसको ये दो दो मैंने पहले ही केस लिखा था मैंने। So this is the case where we prescribe the nitrum sulph, considering the personality, considering the pathology and modality, बराबर है कि नहीं। सो नाइट्रम ग्रुप में हो सकता है नाइट्रम म्यूर कब देना चाहिए, फिर नाइट्रम सल्फ कब, नाइट्रम आर्स कब, नाइट्रम फॉस कब। सो वी सी द नाइट्रम phenomena, the nitrum group, when we think of this nitrum group, correct? ठीक है, एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं या 1 मिनट का, और फिर शुरू करते हैं इसको नाइट्रम ग्रुप को। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए।
See the picture I have selected, I think also have some meaning. Can you comment on this? This shows the क्योंकि एक वीडियो भी भेजा था मैंने उस पर वर्कआउट नहीं किया था, पर मुझे लगा कि ये है, दैट इज द कोर ऑफ दैट वीडियो इज वाइवेशियस, दैट लेडी इज हाईली वाइवेशियस, है ना. कैनाबिस इज मोस्टली द कम इन सच a personality we can think of, है ना. उसमें डिटेल में मैं भेजूंगा आपको. बट ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फेस साइडनेस शो कर रहा है. ये शो कर रहा है फेस के इंटरनल ग्रीफ कितना है या दुख कितना है. ये शो कर रहा है एक, ये अकेली है, किसी की तो भी राह देख रही है. सो एट द सेम टाइम इवन मैं एक बुक पढ़ रहा था, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अगर हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो. उसमें भी फर्स्ट 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 चैप्टर में एक लेडी का पिक्चर दिया है, एंड ऑथर ने बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि ये लेडी के फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है और आप कैसे इंटरप्रेट करते हो कि ये अभी क्या सोच रही है, कौन से स्टेट में है ना. तो वो गुस्से में है ना, कुछ बोलना चाहती है, गुस्से में ऐसा किसी को डांटना चाहती है. सो लाइक दैट वी हैव टू स्टडी लाइक दिस आल्सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड. क्योंकि सी, पेशेंट बोलता क्या है या पेशेंट बोलता क्या है, कंटेंट ऑफ द पेशेंट से ज्यादा कैसे बोलता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है और बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट वी हैव टू कोरिलेट. बराबर है कि नहीं? यही रहता है नाइट्रम का कि अंदर दुख भरा है, पर कुछ केसेस रहते हैं जैसे नाइट्रम कार्ब सैक्रिफाइसिंग, अंदर दुख है पर हंसेंगी, हंसते रहेंगे, किसी को अपना दुख नहीं बताएंगे. तो हमको इंटरनल ग्रीफ या अंदर का दुख या दुख भरी कहानी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. और आवर स्किल ऑफ कम्युनिकेशन और स्किल ऑफ केस टेकिंग दैट मच, यू हैव दैट स्किल फॉर केस टेकिंग कि पेशेंट ने बोलना ही चाहिए, पेशेंट ने अपने फीलिंग्स को बाहर निकालना ही चाहिए. दिस इज द वे ऑफ वेंटिलेशन, कम्युनिकेटिंग देयर इनर इमोशंस, ventilating their inner emotion. This is the one way of psychoanalysis and one way of healing. This is the one way of healing. When we trying to unfold the conflict है पेशेंट में, इमोशनल सेपरेशंस है. when you, because of your case taking, the way of communication, skillful interrogation, that conflict comes on the surface or the suppressed emotions comes outside, gets ventilated, then patient's healing start there. Try to understand this. Patient healing start there because the conflict is getting resolved through your interrogation or communication. तो थोड़ा पार्ट जो है वो ये केस टेकिंग ही कर देता है, हीलिंग का पार्ट. अगर आपने पूरे केस टेकिंग के बाद अगर पेशेंट को पूछा, कुछ केसेस में होता है जहां पे ये जैसे स्पेशली नाइट्रम का केस है, तो पेशेंट को पूछे कि अगर कैसा लग रहा है आपको, इवन दो द पेशेंट इनिशियली अपने फिजिकल कंप्लेंट या डिसीज डिस्ट्रेस में आई है या तकलीफ में आई है, द पेशेंट फील्स बेटर इन बोथ वे, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ओनली आफ्टर द केस टेकिंग, है ना. अपने हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया है कोई मेडिसिन, राइट, हमने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया है, दो द पेशेंट फील्स बेटर. ये इसका अनुभव लीजिए. बिकॉज आवर होम्योपैथिक केस टेकिंग इज नथिंग बट द साइको एनालिसिस, जो साइकेट्री में होता है. साइको एनालिसिस, वी आर गोइंग टू अनफोल्ड द कॉन्फ्लिक्ट, वी आर गोइंग retrospectively to understand the knots, to understand the emotional separation, to understand the emotional conflict. बराबर है. सो
केस टेकिंग में और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करना है हमको. सो वी आर गोइंग द नाइट्रम ग्रुप. केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखना है तो सोडियम, उसका केमिकल नेम है एटॉमिक नंबर 11. हाईली अनस्टेबल है, पर किसी के साथ में अगर जुड़ जाता है तो फिर स्टेबल हो जाता है. इट बिलोंग्स टू periodic टेबल फर्स्ट ए, एंड क्लोरीन दैट इज कम्स टू बिलोंग्स टू हैलोजन ग्रुप, एकदम लेफ्ट अपर साइड में रहता है सोडियम. It reacts to the water easily and dissolve in the water easily. It is soluble in the water. Sodium, Na, sodium is soluble in water. That is present in the great quantity on the earth, ocean and other stagnant bodies of the earth. It is present in the sea in the great quantity. To get stability, natrum tends to give one atom to another element. मतलब स्टेबल होने के लिए अपना एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को देता है, and show their dependency on them and need of the other elements. Once it forms a bond with anion, it becomes difficult to break. अगर एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गया एक एलिमेंट्स देके, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होता, क्योंकि नाइट्रम वो रिलेशन को टाइटली होल्ड करता है. बिकॉज द नाइट्रम कंप्लेंट स्टार्ट आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द रिलेशनशिप, आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट और आफ्टर द लॉस ऑफ लव वन, क्योंकि यहाँ पे उसकी सेंसिटिविटी है. सो एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ के, सबके अपने अपने एलिमेंट्स फ्रॉम है. सेपिया का अलग है, इग्निशिया का अलग है, कल्केरिया का अलग है, मैग्नीशिया का अलग है. सिमिलरली नाइट्रम पेशेंट एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर वन टू वन रिलेशनशिप. वन टू वन रिलेशनशिप चाहिए, है ना. डिपेंडेंसी नहीं रहती है, बट वन टू वन रिलेशनशिप रहता है. डेली रिक्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड. कहाँ पे सोर्सेस क्या है? एप्पल कॉमन साल्ट नाइट्रम. कैबेज, एग्स, पल्सेस, बनाना, चीज, कैरोट, लीफी वेजिटेबल्स, स्मोक फिश, all these are the important sources where you get the sodium. फंक्शन वेरी, ऑस्मोरेगुलेशन, जो वाटर रेगुलेशन है, वाटर का प्रेशर रेगुलेट करता है. इससे अगर सोडियम सोडियम है तो वाटर रिटेंशन करता है, तो ऑस्मोरेगुलेशन के फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है इसका. एंजाइम ऑपरेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. क्योंकि सोडियम कम ज्यादा होने से सोडियम का क्या है प्रॉपर्टी? रिटेंशन. वो वाटर रिटेन करने की, या सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है वाटर रिटेंशन करने का. तो ऑस्मोरेगुलेशन में इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका. एक्सेस अमाउंट अगर हुआ, या हाइपोनाइट्रेमिया या हाइपरनाइट्रेमिया, इट गिव्स राइज टू अ सर्टेन सिम्टम्स. तो एक्सेस में भी हुआ तो भी प्रॉब्लम है, या एक्सेस में हुआ तो रिटेंशन होता है वाटर का, तो इडिमा डेवलप होता है, हाइपरटेंशन डेवलप होता है. दैट्स व्हाई द वी अवॉइड द सोडियम salt when patient having the, we advise to avoid the excessive salt when the patient having the hypertension. हार्ट फेल्योर भी हो सकता है if there is a imbalance in the sodium. See, the sodium element is so small in quantity in the blood, but imbalance in the plasma or blood leads to a major illness, major problem, like even the heart failure. डेफिशिएंसी अगर है, हाइपोनाइट्रेमिया अगर है, तो डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लिथार्जी हो सकता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड आ सकता है, एक्सेसिव पर्सपिरेशन हो सकता है, मस्कुलर क्रैम्प्स आ सकते हैं. सो दैट मच दिस सोडियम एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी. व्हेन इट बेनिफिट्स भी क्या है? बेनिफिट्स भी है इसमें. नाउ दिस कॉमन फीचर्स इन द नाइट्रम ग्रुप, सोडियम ग्रुप, कॉमन फीचर्स क्या रहते हैं? बिकॉज जब वो दूसरे एलिमेंट को मिल जाता है, जैसे आर्स को मिलेगा तो नाइट्रम आर्स हो जाएगा, म्यूर को मिलेगा नाइट्रम म्यूर, सल्फ को मिलेगा नाइट्रम सल्फ. बराबर है कि नहीं? अभी ये केस में जैसे है कि मैंने नाइट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब किया, बराबर है, कंसिडरिंग द ब्रोंकियल एफिनिटी अवन, एफिनिटी टू ब्रोंकाई, patient having affinity to bronchi and produce the bronchial asthma. Second, aggravated by damp weather mostly, more than cold, damp weather sensitivity. बट अगर हो सकता है कि lying down position aggravation, a patient becomes more anxious in the asthma, and this there is a fear of death,
So might be with this personality, I may choose the nitrum arsenicum. So though the core is the same, but with some different features and shade, we think of some other shades of the nitrum. So this is again important. This is also very, very important. So nitrum kya speciality hai nitrum? Because this is very, very important drug. And 30 to 40% प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कि नाइट्रम का होगा, नाइट्रम ग्रुप का. कई नाइट्रम फोस देंगे, कई नाइट्रम सब देंगे या नाइट्रम म्यूट देंगे. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी इन आवर प्रैक्टिस. तो अगर हमको ये समझ गया, and nowadays there was lot of suppressions of emotions, there are a lot of anger, indignation, mortifications, है ना, the diseases which carry or ultimately patients having because of this nitrum salt or nitrum mure या nitrum imbalance. तो उसमें रिटेंशन, इडिमा, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं, स्किन से रिलेटेड डिसीज होते हैं जैसे एक्जिमा वगैरह. So first most important thing in the nitrum is the hypersensitiveness. Yeah, highly sensitive. He or she is highly sensitive and highly vulnerable, easily gets affected. The peoples, such peoples of nitrum groups are very sensitive to rudeness, very sensitive to criticism, and even the very sensitive to ignorance. अगर कोई रूठ गया उससे, even this ignitia is the same quality. कोई रूठ गया तो वो नहीं रह सकते. कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई अवॉइड कर रहा है उसको, मतलब देख नहीं रहा है, मतलब उसको भाव या उसको जो वैल्यू चाहिए नहीं मिल रहा है, या कोई अगर पूछ नहीं रहा है, सो नाइट्रम गेट्स अफेक्टेड. So this is the sensitivity. I already told every drugs, every remedy has its own sensitivity. And we have to understand and we have to match that sensitivity with the patient, because every person has the particular sensitivity. बराबर है कि नहीं? So nitrum sensitivity is the sensitive to rude, sensitive to criticism, sensitive to ignorance. बराबर है? Like this. And when hurt, when the patient becomes hurt in any how, when the sensitivity becomes hurt or sensitivity gets injured, like Staphysagria में कहा है humiliation and mortification. उसका जब humiliation feeling आता है या उसका insult होता है सबके सामने, जब वो this sensitivity high होने के कारण pride injured होता है या pride injured होता है, तो कंप्लेंट स्टार्ट होते हैं या डिसीज स्टार्ट होता है. तो स्टेफिस की सेंसिटिविटी ओ लेवल पे है. तो वो कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे नाइट्रम की सेंसिटिविटी अगर हर्ट होती है या इंजर्ड होती है, तो दे बिकम्स विड्रॉ, दे बिकम्स गोज इनसाइड, दे गोज इनटू द शेल. दिस इज important. See, might be other peoples are also sensitive to criticism, sensitive to rudeness, like carcinosin also sensitive to reprimands, carcinosin. But here the how the nitrum you react to that injured sensitivity or hurt sensitivity, they becomes withdraw inside and cannot forget the hurt. जिसने हर्ट किया है, जिसके कारण हर्ट किया है, उस उसको कभी भूलेगा नहीं लाइफ. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द nitrum. And even cannot forget the past disagreeable occurrences. This is the brooding and dwelling. That is the rubric, dwelling on the past disagreeable occurrences. The remedies, most important remedy is the nitrum. Right? Patient easily goes into the grief once the sensitivity is getting hurt. Patient easily goes into the grief when the attachment is lost, where he depends, when the person on whom he depend or getting love and care is lost, separated, they goes into the grief, goes into the depression.
they get stuck into the past because it is difficult for the natrum to comes out of the past or out of the situation where they get offended or hurt or getting insulted. तो उससे बाहर आना डिफिकल्ट हो जाता है. दे आर नॉट गोइंग इजी, है ना. कोई दूसरी पर्सनालिटी है, ये ठीक है, भूल जाएंगे. नॉट गेटिंग ब्रूड्स, नॉट ड्वेल्स. Even the natrum patient develop the hatred feeling or that relationship or that person. That's why patient goes easily into the depression and pessimism, negativity. They becomes close and they enjoy aloneness only. They avoid the people contact. They avoid to participate in the function. They avoid the relationship. बिकॉज रिलेशनशिप में हो सकता है पहले धोखा मिले, बिट्रेड फीलिंग आ जाता है, धोखा मिल जाता है रिलेशन में, तो और कोई नया रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी इतनी हाई होती है कि कोई नया रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करते, तो वो गोज इनटू द ही विड्रॉ एंड गोज इनटू द शेल. दे आर वेरी क्लोज एंड डू नॉट फील लाइक टॉकिंग अबाउट. दे डोंट फील लाइक टॉकिंग. जिसने हर्ट किया है की बात ही नहीं करना. कभी कभी इतना हेट्रेड फीलिंग लाइक अ नाइट्रिक एसिड इज आल्सो हैविंग द हेट्रेड फीलिंग टू द पर्सन हु हैज ऑफेंडेड हिम. देयर इज अ rubric, hatred feeling of person who has offended. The nitric acid nitramur is the topmost remedy. That's why because of the relationship में काफी गैप रखते हैं या काफी डिस्टेंस रहता है, तो ये फ्रेंड्स ज्यादा बना नहीं पाते nitramur. They don't even like the guest in the house because उसका जो दायरा है उसमें इंटरफेयर करने के लिए कोई नहीं चाहिए नेट्रम. दे प्रिफर टू बी अलोन. दे डोंट वांट मच कंपनी. दैट्स व्हाई अगर रिलेशन या फ्रेंड्स भी रहेंगे तो एक दो रहेंगे जो जिससे वो क्लोजली अटैच रहे. मोस्टली द वीपिंग when hurt, when get insulted, when get criticized, when there is a rude behavior, rude treatment, the patient gets weeping, but weeps when alone. Weeping alone. मतलब कैसे रहता है ना कि लेडी है गेटिंग हर्ट, गेटिंग क्रिटिसाइज, तो रोएंगी पर सामने नहीं. लाइक अदर रेमेडीज, लाइक अ पल्सिटिला, लाइक अ कल्केरिया और अदर रेमेडी. नाइट्रम ग्रुप वीप्स अलोन. नाइट्रम अलोन मतलब लेडी है तो बाथरूम में जाएंगी, वहां रोएंगी, आंसू पोंछ के आएंगी, बताएंगी नहीं. मतलब अंदर दुख भरा होगा पर बाहर नहीं सामने आएगा. मे बी द फेस शोज सैडनेस, मे बी द फेस शोज द इंटरनल ग्रीफ. तो हमको ये पढ़ना है प्रैक्टिस में कि पेशेंट आया है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है. पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब कुछ दुख नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है लाइफ. आपको दिख रहा है फेस से, फेशियल एक्सप्रेशन की इसको दुख है, इसको चिंता है. वो फेस का शैलो कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है, डार्क रिंग्स दिख रहा है, फेस पे वो स्माइल नहीं आ रहा है, चीयरफुलनेस नहीं है, सैडनेस ज्यादा है, डिप्रेस फील लग रहा है, बट पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. तो दिस इज आवर स्किल टू गोज इनटू द डीप ऑफ द इमोशंस. और पेशेंट को इंटरोगेट, पेशेंट का इंटरोगेशन ऐसा होना चाहिए कि उसने सब बताना चाहिए. दिस इज द स्किल ऑफ द केस टेकिंग. और ये स्किल एक दिन में दो दिन में नहीं आता है. हम जब समझेंगे कि हमारा गलती कहाँ हो रही है हमारी, या ड्रॉबैक कहाँ हो रहा है, या हम क्वेश्चनिंग किस तरह से कर रहे हैं, बिकॉज द वे वी क्वेश्चनिंग दैट गिव्स द इम्पैक्ट कि पेशेंट कैसा आंसर करेगा. कभी कभी तो क्वेश्चन करने के बाद वी हैव टू टेक अ पॉज, स्मॉल पॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन हम पूछते हैं, पेशेंट ने जवाब नहीं दिया तो हम चेंज कर देते हैं हमारा क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं. तो वी आर जंपिंग फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर. हम पेशेंट को आंसर करने को समय ही नहीं दे रहे. तो समटाइम्स द शॉर्ट पॉज आफ्टर क्वेश्चनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लुक एट द पेशेंट.
उसको बोलना है, हमको पता है कि उसको बोलना है, बोल नहीं पा रहा है, रुक जाओ, पॉज ड्यूरिंग द केस टेकिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, सिंपथी बताओ, ऐसे बताओ कि मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ. सो इफ यू कन्वे दैट, देन द पेशेंट ट्राइंग टू नरेट, trying to ventilate. At the same time, this Natrum patient doesn't want the consolation and pity, don't want the sympathy. Even if someone interrogating or asking about the disease, तुमको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तुम ये करो, वो करो, even patient don't want. That's why they don't reveal their diseases easily. जैसे दूसरे रहते हैं कलगिरिया, आर्सेनिक, है ना, ये लैमेंटिंग रहते हैं, ये कंप्लेनिंग रहते हैं, पल्सिटिला कंप्लेनिंग रहते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं, उनको चाहिए कि किसी की मदद, मैं अपना दुख बताऊंगा वो हेल्प करेंगे, इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, इसलिए इसमें नहीं है नाइट्रोम. एंड देयर इज एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर, अगर हम रिपीट करेंगे ये एक्यूट में क्वेश्चनिंग करने का ये है, एंगर व्हेन ऑब्लिक टू आंसर, एओटा बोलते हैं. अदर रेमेडी आर द कोलोसिंथ, नक्सोमिका, लाइक दैट. These peoples are very aloof. Fear of out of his vulnerability and sensitivity. जॉन शॉल्टन ने क्या लिखा है अबाउट द नाइट्रम ग्रुप, द impulsive relationship. This is taken from the John Sholton Elements of Homeopathy, right? Impulsive relationship, relationship ऐसे रहती है कि कटाक से टूट जाएंगी, कटाक से बन जाएंगी. There is a impulsiveness and impetuousness in the relationship. Changing relationship is not emotional to have patient, but slight hurt will not tolerate. So there is a रिलेशनशिप में नाइट्रम की काफी चढ़ उतार आता है, is highly vulnerable and emotional. There is a lack of perseverance in the relationship because of the hurt feeling, previous hurt feeling. They don't trying to pursue and trying to stable the relationship. They don't take the efforts to do that. The lack of perseverance, especially in the establishing the relationship. जैसे कोई दूसरे पेशेंट है ना, नाइट्रम सल्फ है, वो रिलेशनशिप बॉन्ड को बना के रखने की कोशिश करता है. काली ग्रुप है तो रिलेशनशिप दो इट इज क्वारलसम, इरिटेबल, बट वो चाहता है कि सब साथ में रहे, तो रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग, केयरिंग से वगैरह, वो सबको पास में रखते हैं, बांध के रखते हैं. रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए, कार्सिनोसिन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, तो रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए, इग्निशिया, तो उसके लिए वो केयर करता है. नाइट्रम ऐसा नहीं करता है, स्पेशली नाइट्रम यूरिया ऐसा केयर नहीं करता. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबके साथ रिलेशनशिप कैसा है. तो आईपीआर, when we taking the case we have to evaluate even the IPR, interpersonal relationship, to the family member like parents, wife, children's, socially या फ्रेंड सर्कल में, बॉस के साथ कैसे, एम्प्लॉय के साथ कैसे, अपने से ऊंचा, अपने से जो छोटा है जॉब में, उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, ये पूछना और ये समझना जरूरी. दैट गिव्स द पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग, राइट. So need of the nitrum is always a respect and esteem. This is the esteem remedy. यहाँ पे esteem अगर हर्ट हुआ या रिस्पेक्ट नहीं मिला, मैंने बोला ना रिस्पेक्ट अवॉइड किए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. कलकिरिया का नीड क्या है, कलकिरिया इज टीमिड, तो वहां पे सपोर्ट चाहिए उसको. पल्सिटिला टीमिड, तो वहां पे सपोर्ट चाहिए. द रेमेडीज आर डिफरेंट. मेरे पास एक चार्ट है कि हर एक मेडिसिन का क्या नीड है, तो हमको ये केस में समझना है कि नीड क्या है, राइट. सो लीन थीन इमेशिएटेड, थोड़ा फास्ट लेता हूँ, पेल शॉर्ट एंड एनेमिक. मोस्ट ऑफ द नाइट्रम्स आर लीन थीन, इट इज नॉट ओबेज लाइक कालीकार्ब, कलकिरिया और अदर रेमेडी लाइक मैग्नीशिया. So these peoples are mostly tall, lean, thin, and emaciated. Thirsty, most of the nitrums are thirsty, except the nitrum carb may be thirstless or thirsty. Nitrums may be hot or chilly. The hot nitrum, especially nitrum ur, is
hot, natrum sulph is hot, and natrum iod is hot. But if in contrast, natrum arsenicum is the chili and natrum carb may be chili or hot. Barabar? So we have to understand the chili and thermality. Craving, हर नाइट्रम में साल्ट क्रेविंग है, फिश क्रेविंग है, बट एवर्शन टू मिल्क है. स्पेशली मिल्क एवर्शन एंड इंटॉलरेंस इज मार्क इन द नाइट्रम कार्ब. If you choose the natrum group and you get the predominant milk aversion and milk intolerance to that patient, then think of natrum carb instead of natrum mur or natrum phos. If you get the sensitivity to thunderstorm and patient is affectionate, even communicative, तो phosphorus का शेड दिखेगा आपको. Craving for ice cream, cold drink, so think of natrum phos. So शेड जब देखते हैं हम तो उसके क्वालिटेटिव फीचर्स नाइट्रम ग्रुप के साथ में देखना पड़ता है. Mostly the patient having the sun headache, all the natrum. Sun headache, not necessarily the warmth aggravation, it is aggravated by sun. ऐसा नहीं कि गर्मी से तकलीफ हो रही तो नाइट्रम है, गर्मी से नहीं, सन से तकलीफ होती है. स्पेशली सन में अगर गए, धूप में गए, तो मोस्टली द पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक और वीकनेस और डेबिलिटी. तो सन हेडेक इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नाइट्रम. सो देयर आर द वेराइटीज ऑफ नाइट्रम, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. तो हम थोड़ा डिटेल में नाइट्रम म्यूर देखते हैं. नाइट्रम को एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, नाइट्रम ग्रुप को. तो नाइट्रम म्यूर भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इमोशनल पैथोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं. सो नाइट्रम म्यूर इज द टेबल साल्ट, इज अ कॉमन साल्ट. इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर एंड देन एनी अदर सब्सटेंस एक्सेप्ट द वाटर. जैसा पानी पूरे नेचर में है, पृथ्वी तल पे है, वैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl भी एम्पल अमाउंट ऑफ में है, पर पानी सबसे ज्यादा है. और पानी में भी जैसे ओसिन में समुद्र में क्या रहता है, नाइट्रम म्यूरी रहता है, बट नाइट्रम म्यूरी डिसॉल्व इन द वाटर. तो ओसिन में भी नाइट्रम म्यूर एम्पल अमाउंट में रहता है. ये एलिमेंट ऐसा है जो सी में एम्पल अमाउंट रहता है. इट इज प्रेजेंट इन द ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बट स्पेशली फ्लूइड, and it is important minerals in the blood plasma. It is a cheap regulator. It is acts like a osmoregulation. That's why it is a cheap regulator of osmotic pressure. ये decide करता है osmotic pressure, because the water का imbalance इससे होता है, क्योंकि it has the capacity to retain the water. इसलिए जहां पे भी इडिमा दिखा और कुछ नहीं समझा. एक ऐसा था केस जब मैं MD कर रहा था ML धौले में, तो स्क्रीनिंग करना पड़ता था. तो वहां पे एक केस आया जिसमें स्क्रीनिंग करना पड़ता था, रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब करना था, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ वेरी डिस्ट्रेसिंग और एक्यूट. तो क्रोनिक था, पेडल इडिमा था. तो मुझे लगा कि पेडल इडिमा है, पीटिंग है, और मुझे लगा कि पैलर भी है, मतलब एनीमिया है उसको. तो मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग द SL, आई प्रिस्क्राइब द नाइट्रोम्यूर 6x, और उसका केस पोस्ट करना पड़ता था. केस मतलब केस टेकिंग के लिए 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जैसे समय है. तो 1 हफ्ते बाद जब मेडिसिन डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि इसके लिए केस लेना है बा, जब मेडिकल ऑफिसर ने देखा, तो मोर देन 50% पेशेंट को रिलीफ हो गया था. उसका स्वेलिंग जो पेडलिटीमा था, मोर देन 50-60% कम हो गया था. तो उन्होंने मुझे कॉल की कि तुमने नाइट्रोम्यूर दिए, पेशेंट को आराम है. बराबर. सो edema, it gives rise to pathology edema because of the retention of water quality, or because of the quality of retention. Or the natrum filling. Main feeling of the natrum is that she will be let down, मतलब उसको कम लिखा जाएगा. She will be betrayed or disappointed by the person her trust depends on, or by the one she loves. मतलब जिसपे वो विश्वास है, जिसपे ट्रस्ट है, उससे ही उसको बिट्रे मिलेगा, धोखा मिलेगा, या डिसअपॉइंटेड हो जाएगा.
तो ये फीलिंग कांस्टेंट रहेगा नाइट्रम म्यूर में स्पेशल. She will let down or betrayed or disappointed by the person on whom she depends on or by on whom she loves. The relationship she seeks is not one of dependence like dependence. ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप नहीं रहता, थोड़ा वन टू वन रिलेशनशिप ज्यादा रहता है. तू तेरा मैं मेरा, जैसे तू मैं तू टीटीए का रहता है ना, उस तरह से. तो डिपेंडेंसी सीवियर नहीं रहती जैसे पल्सिटिला में रहती है, जैसे कल्किरिया में रहती है, और जैसे मैग्नीशियम में रहती है. द बिट्रे दैट शी फील इज बिट्रेड ओवर ट्रस्ट और फेथ. मतलब फियर ऑफ बिट्रेड और डिल्यूजन बिट्रेड ये ज्यादा है. शी हैज अ फियर ऑफ बीइंग इमोशनली हर्ट और डिसअपॉइंटेड because of the previous incidents of disappointment or betrayed by someone. She develops the fear of betrayed or fear of being disappointed, and hence she goes into the shell. That means she or he become reserved and unapproachable. वो लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहता, फिर जैसे इंडिफरेंस जैसे अपना एक दायरा बना लेता है. पहले पहले रहता है. दिस इज ये जो है, ऐसा नहीं कि नाइट्रम शुरुआत से ही रिजर्व है. हम अगर सोरिक नाइट्रम जैसे बताऊंगा मैं, तो ही इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज क्वाइट सेंसिबल पर्सन, ही इज क्वाइट परफेक्शनिस्ट पर्सन, ही इज हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग पर्सन, दूसरों को इमोशन भावनाओं को समझने वाला सिंपैथेटिक पर्सन सोरा में. पर उसकी सेंसिटिविटी जब हर्ट होती है, तो जब डिसअपॉइंट होता है, बिट्रेड होता है, दैट after that this nitrum mur specially goes into the shape. बराबर है कि नहीं? इट इज नॉट लाइक कि पहले से ही, जैसे सेपिया पहले से इंडिफरेंस नहीं रहती है, सेपिया का भी डिफरेंस हम देख सकते हैं. तो यू डोंट गेट द इंडिफरेंस इन एवरी केस ऑफ द सेपिया. उस स्टेज में जब जाएंगे, उस सिफिलिटिक स्टेज में, तब ये जब सिफिलिटिक स्टेज में जाएगा तो नाइट्रम तो अलग रहेगा. सो नाइट्रम पर्सनालिटी कैसे रहते हैं? वेरी ग्लूमी, जॉयलेस एंड इंडिफरेंट. मतलब आफ्टर साइकोटिक पर्सनालिटी, मोस्टली सफरिंग अंडर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट. डिजायरस ऑफ सिंपैथी एट एवर्स टू एंड एग्रेवेटेड बाय कंसोलेशन. अंदर से तो लोनली फीलिंग होता है उसको, अकेलापन महसूस होता है, मैं अकेला हूं तो मुझे प्यार चाहिए, केयर चाहिए. पर उसको सिंपैथी और पिटी सिंपैथी और पिटी भी किसी का पसंद नहीं. They constantly dwelling on the unpleasant recollection and never forget the bad or good. Never forget, never forgiving even the bad or good. मतलब अच्छी चीजों को भी बहुत याद रखता है और बुरी चीजों को भी. जिसने अच्छा किया उसको भी याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं कि वाह हाँ 2 साल पहले, 3 साल पहले हाँ इसने मदद की थी. पर अगर बुरा किया तो भी नहीं भूलेगा, वो भी सालों तक चलते रहेगा. This introvertedness or reservedness is comes because of the feeling of great vulnerability or emotional injury. तो हमको वो नाइट्रम रिजर्व दिखेगा आपको, पर ये रिजर्वनेस या क्लोजनेस या अलूफनेस क्यों आया है, क्या इंसिडेंस लाइफ में हुआ है, वो हमको ढूंढना पड़ता है. बिकॉज दे आर इमोशनली वेरी सेंसिटिव. इसमें ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है. दे आर लाइकली ए सिंपैथेटिक, है ना. अभी नाइट्रम चाइल्ड कैसा रहेगा, नाइट्रम यूथ, है ना. इवोल्यूशन भी देखना जरूरी होता है. अगर इवोल्यूशनरी स्टडी करना है आपको, तो देयर इज वन बुक कॉल्ड एज होम्योपैथिक साइकोलॉजी. फिलिप बेली इज गुड बुक. हम जब स्टूडेंट बीएचएमएस कर रहा था वहां, तब पढ़ा था मैंने, अभी भी कभी रेफरेंस लेता हूँ. अनदर बुक टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी और इमोशनल पैथोलॉजी इज द इसेंस ऑफ मटरा मेडिका, दैट इज द जॉर्ज विथालकोस, है ना. तो देर इज वन बुक कॉल्ड प्रिज्मा. प्रिज्मा में भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है. सो नाइट्रम योर चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव टू डिसहार्मोनी. अगर फैमिली में या
डिसहार्मोनी कहाँ होगा, चाइल्ड को कहाँ दिखेगा, पेरेंट्स में दिखेगा. सो इफ द पेरेंट्स फाइट द चाइल्ड में नॉट रिएक्ट इमीडिएटली. तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेगा, इमीडिएटली अपने इमोशन शो नहीं करेगा, बट विल सफर इनसाइड. इतना इनसाइड सफर होते रहेगा, इतना इनसाइड डिस्टर्ब होगा, हर्ट होगा, कि उसको फिजिकल कंप्लेंट स्टार्ट हो जाएंगे. तो देर इज अ साइकोसोमेटिक डिसीज स्टार्टेड. These children are quite a well behaved, disciplined children, responsible children. बराबर है कि नहीं? But after sensitivity gets injured or after a disharmony, they may show the hysterical expression. So the hysterical tendency in Natrum children is seen readily when they are severely reprimanded, when they are severely scolded by the people, especially parents. They shows the hysterical reaction, hysterical way, might be in anger way, temper tantrum they बताएंगे. They then react to extreme degree. एंगर एक्सट्रीम डिग्री में शो करेंगे, टेम्पर टैंट्रम बोलेंगे, बताएंगे, या फ्लोर पे ऐसा जमीन पे लेट जाएंगे. स्पेशली दीज आर चिल्ड्रन फॉलिंग ऑन द फ्लोर इन द टैंट्रम, किकिंग एंड स्क्रीमिंग. तो इन दिस स्टेट इवन द कंसोलेशन और रीअश्योरेंस हैज नो इफेक्ट ऑन दैट. कंसोलेशन या रीअश्योरेंस करेंगे और बेटा बेटा करेंगे तो और गुस्सा आएगा, और हो सकता है चीजों को फेंकेगा, लात मारेगा, kicking, screaming, shouting. So consolation gets aggravated. You get this sensitivity even in the childhood. समझेगा नहीं, समझने वाली की बात रो रहा है और समझेंगे बेटा बेटा ये तो दूसरा रेमेडी. बराबर है ना. Another characteristic pathology in the children you get they have the inability to pass urine in the presence of others. Cannot pass urine or stool in presence of other because of the shyness, because of the sensitivity or the fear of ridicule. Reason with fear of ridicule की हो, लोग चिढ़ाएंगे. बराबर है, अपनी कमीपना दिखेगा. तो बिकॉज ऑफ द इवन शाइनेस, दूसरा रेमेडी अम्ब्राग्रेशिया, जहां पे शाइनेस प्रीडोमिनेंट है, इनहिबिशन, अम्ब्राग्रेशिया. बराबर. तो कैन नॉट पास यूरिन और स्टूल इन प्रेजेंस ऑफ अदर. दिस अराइजेस फ्रॉम द फियर ऑफ राइडिक्यूल रिजल्टिंग इन क्रोनिक टेंशन इन द स्पिंक्टर मसल्स which can be relaxed only in the private. मतलब लोगों के सामने, even in the I have seen the my friend when I was we were studying in the BHMS. that time रहता है ना कि सब ग्रुप में ऐसा रहता था. बच्चे मतलब क्लास छूट गया, लेक्चर खत्म हो गया, रेस्ट है, तो ग्रुप में जाते थे, है ना, रिलैक्स होने के लिए. तो एक बंदा उसमें ऐसा था कि सब अंदर चले जाते थे यूरिन के लिए, पर एक बंदा ऐसा रहता था तो जो बाहर अकेला खड़ा रहता था एवरी टाइम. और सब जब चार पांच लोग सब हम ग्रुप निकल आते थे बाहर, तब वो अंदर जाता था. फर्स्ट ईयर में 2 4 6 महीने 8 महीने बाद समझा कि दिस इज द सिम्टम वेयर द कैन नॉट पास यूरिन और स्टूल इन प्रेजेंस ऑफ अदर. एंड उसके सब फीचर्स जब मैंने उसका स्टडी किया अच्छे, मतलब तभी तो समझा कि ये नाइट्रम पर्सनालिटी है, नाइट्रम म्यूर है. कैसे? ही वॉज इन्वॉल्व इन वन गर्ल जिसमें उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था. फाइनेंशियली दैट गाय वाज वेरी पुअर. साइकिल से आता था, स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्कर, हाईली कंसेंशियस, साइकिल से आता था. कहाँ से? 10 से 15 किलोमीटर, शायद 12 से 15 किलोमीटर दूर रहता था, और वो साइकिल से आता था. और जो भी मम्मी पापा उसको कुछ खर्चे के लिए पैसे देते थे, है ना, थोड़ा थोड़ा वो बचा के रखता था. उसकी जो गर्लफ्रेंड है साल में एक बार जब आती थी उससे मिलने के लिए, तब उस पे वो खर्चा करता था. सी द इमोशंस अटैचमेंट. एंड शी वाज हाईली रिजर्व, इवन द शाय एंड हाईली सेंसिटिव. बात तो लाइक दैट. तब इंस्टेंटली तब समझाने पर धीरे धीरे जब मटरा मेडी का समझने लगा,
पर्सनैलिटी समझने लगा तो हम कोरिलेट, मैंने जब कोरिलेट किया तो समझा कि ये तो नाइट्रम पर्सनैलिटी है, नाइट्रम म्यूर है। सो लाइक दैट दिस मैथमेटिक्स का अगर सीखना है तो हम अपने फैमिली, सोशली फ्रेंड सर्कल में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन व्हेन वी आर सीइंग एनी वीडियोस, टीवी सीरियल्स और इवन द फिल्म, हम देख सकते हैं कि ये बिहेवियर कैसा है, इसका मेंटल स्टेट कैसा है, इसका मेंटल बिहेवियर कैसा है ना। तो हम ऐसे साइकोलॉजी समझेंगे हम पर्सन का, हम उसको कोरिलेट कर पाएंगे अपने मैथमेटिक्स से। So this Nitram child develops the intense emotional and sentimental attachment for the people, but they don't show their feeling. मतलब ये इमोशनल है अंदर से, पर नॉट एवरी टाइम और नॉट नेवर शोज द इनर फीलिंग की बात कितना केयर करता हूँ। Like that, the daughter may have the deep feeling for their father, the Nitram daughter, but without realizing to the father कि मैं कितना केयर करती हूँ, कितना मेरे अंदर आपके लिए इमोशन है। But when the father dies, get expired because of accident, whatever, the daughter goes into the severe grief and goes into the silence. She grieves silently, locking herself in the room and crying in her pillow, but never show to any other family member. रोती रहेंगी, घुटते रहेंगी, दुख में रहेंगी, पर बताएंगे जब बाहर आएंगी तो साइलेंट रहेंगी, समझेगा नहीं कि ये अंदर रो रही थी करके। Is the inner grief and inner silent griefs of Nat-iod child. They locking herself in their room and crying in her pillow. To the surprise of every around her, did not realize the depth of the affection. कोई दूसरा या फैमिली मेंबर इवन उसके डेप्थ ऑफ इमोशन को नहीं समझ पाएगा। And gradually she becomes introverted. They goes away from the peoples and become aloof. And they like only they like the things where the aloofness is enjoy, like reading books and music. मतलब इंडोर पसंद आएंगे उसको, बाहर खेलना लोगों के साथ में जहाँ पे सोशल होते हैं, वो गेम्स या वो एक्टिविटी नाइट्रम को पसंद नहीं आएगी। बराबर। अभी अगर इमोशंस और फिजिकल बॉडी को कोरिलेट करते हैं, द स्टेट ऑफ माइंड कैन बी ब्रॉट अंडर द प्रिंसिपल एंडिंग, रिड्यूस एसिमिलेशन, ब्रेकडाउन तो इमेसिएशन होता है, वीकनेस आता है, डीअरेंजमेंट ऑफ ब्लड लाइफ तो एनीमिया डेवलप होता है। ऑल दिस आर द डिसीज कंडीशन। अभी हम देखते हैं कि जो भी पर्सनालिटी है, जो भी नाइट्रम सॉरी जो भी रेमेडी है, उसको उसके सिम्टम्स को हम मैथमेटिकली क्लासिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेपिया भी है, कल्केरिया भी है, तो उसमें आपको सोरिक सिम्टम्स भी मिलेंगे, साइकोटिक भी मिलेंगे, सिफिलिटिक भी मिलेंगे। किसी में हो सकता है कि साइकोटिक ज्यादा हो, सोरिक कम हो, किसी में हो सकता है सिफिलिटिक ज्यादा हो। तो अकॉर्डिंग टू मी हमको हर रेमेडी का ट्रायमाइजमेटिक एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हम समझे कि स्टेट क्या है, सेंसिटिविटी क्या है और डिस्पोजिशन क्या है। क्योंकि हर केस में हमको सोरा समझना जरूर रहता है, जो सॉइल रहता है, बेसिक नेचर रहता है, और हर केस में स्टेट समझना रहता है, जो मोस्टली सिप्लेटिक रहता है। जैसे हम नाइट्रम को समझेंगे, सोरिकली देखेंगे हाईली सेंसिटिव है, इमोशनल है, ग्रेट वल्नरेबिलिटी है, इजीली ऑफेंडेड है, इजीली गेट्स एंग्री, इरिटेबल है, सिंपैथेटिक है, एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल भी है, डिग्निफाइड भी है, लाइक स्टेफिसग्रिया, हाई सेल्फ स्टीम है, परफेक्शनिस्ट है, मतलब कंसाइंशियस है, बट एट द सेम बट एज द सेंसिटिविटी गेटिंग हर्ट्स, वो साइकोसिस में जब जाता है नाइट्रम तो बिकम क्लोज एंड रिजर्व एंड इंट्रोवर्टेड, बिकम साइलेंट। दैट्स व्हाई क्वाइट एवर्शन टू गेस्ट। जब आप नाइट्रम चुनते हैं ना एज द पेशेंट, कि अगर गेस्ट घर में आते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो नाइट्रम नेवर लाइक द गेस्ट बिकॉज दे इंटरफेयर विद देयर टेरिटरी। तो जब वो एंजॉय करता है, अलोफनेस अलोननेस ही एंजॉय करता है। They get aggravated by consolation and conversation.
dwells on past, weeps easily, lot of fears, sad, depressed. These all are psychotic symptom. Psychosis symptom. Inability to pass to or in presence of other. उसका एक प्रिंसिपल रहता है नाइट्रम को, नॉट टू हर्ट एंड नॉट टू बी हर्ट. अभी सिफिलिटिक नाइट्रम कैसा रहेगा? देयर वाज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ. ग्रीफ का सिफिलिटिक एक्सप्रेशन रहेगा लाइक अ बॉइस्टरस और साइलेंट ग्रीफ. ऑकवर्ड, ऑकवर्ड हास्टी ड्रॉप्स थिंग इजीली. सुसाइडल टेंडेंसी फॉर्म होता है. स्पेशली ये सुसाइडल टेंडेंसी नाइट्रम सल्फ में ज्यादा होता है. Even they goes into the hysteria. Hysteria rage with only the Nat-mur is the remedy. Hysteria rage with मतलब violent anger. Shameless in the bed, Nat-mur. These are the syphilitic expression of Nat-mur. Prostration of mind, severe prostration of mind, rage, fury, consolation from. कंसोलेशन से इतना एग्रेवेट हो जाता है कि वायलेंट एंगर या फ्यूरी या रेज डेवलप होता है. अनदर रेमेडी इज द टारंटुला. चाइल्ड कैसा रहता है? नाइट्रम चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव टू डिसहार्मोनी, may express the hysterical tendency when becomes reprimanded. Already we have seen elements from नाइट्रम में इतने रहते हैं: disappointment, deception, anger, humiliation, rudeness and accusation, that means reproaches. एलिमेंट्स ऑफ रहते हैं मतलब ये सेंसिटिव पॉइंट्स है नाइट्रम के. इसके बाद उसका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है या डिसीज स्टार्ट होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Even elements from grief, loss, separation, even the unrequited affection brings on complaint or one-sided affection. One-sided बोलते हैं ना, one-sided love. लड़की तो कुछ, लड़की के मन में कुछ नहीं, पर यही one-sided love कर बैठा, तो उससे तकलीफ. Injury to head, masturbation, this is elements from fright. Especially you can see in the nitromure ignition, platina, love wrong person with, or love to married man or coachman. Love to wrong person, because the decision making capacity of this nitrum group is highly emotional. Like other people's, they take a decision through their emotions and intellect. But the decision of the nitromure is especially a emotional background, emotional ground. वो ये नहीं सोचेंगे कि क्या लगेगा क्या होगा. उसको ऐसा पर्सन मिल गया जो समझ रहा है चीजों को, वो अटैच हो गया है ना, उसके दुख को समझ रहा है, तो दे फ्लो विद दैट इमोशंस. तो हम देखते हैं ना कि अपने जो कोचमैन है उसके साथ लेडीज या लड़की भाग गई, या सर्वेंट है उसके साथ, तो दे बिकम सो इमोशनल, इमोशनली फुल, दे इंडulge इन द लव. So love silent grief with, love disappointment and happy silent grief with. These are the important rubric which shows the nitrum intensity. Right? So there are a lot of things are there which need to explain, but because of the lacking the time, I shift to the nitrum, another remedy. These are the single remedy rubric. Always study the single remedy rubric. Try to find out the single rubric which having the single remedy. जैसे ये rubrics मैंने निकाला, इसमें नाइट्रम्यूर सिंगल ही है. इंडिफरेंस एक्सर्शन आफ्टर और मेंटल एक्सर्शन. नाइट्रम्यूर ऐसा है कि अगर जॉब से आता है या एक्सर्शन जब होता है उसको, या जॉब है उससे अगर घर आता है, तो उसको किसी के साथ बात करने की इच्छा नहीं होती. वो लव केयर नहीं दिखाएगा, उसको शांत चाहिए. बराबर है कि अगर बीवी कुछ बताना चाहेंगी या कुछ ऐसा केयर करना चाहेंगी, या और कोई बच्चे, तो उसको पसंद नहीं आएगा. सो इंडिफरेंस एक्सर्शन आफ्टर or indifference mental exertion after, this is the predominant in the prominent in the nitramure. Delusion rubrics, अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. The delusion rubrics in the nitramure, lot of delusion you can see. The denial delusion belongs to a denial, delusion belongs to depression, delusion belongs to a resignation. These are the defense mechanism. Delusion of persecution, delusion of
insulted, delusion of neglect, delusion rage she looks when looking in a mirror. मतलब अपने आप को ही ऐसा लगता है कि क्या है, कितना गलत इंसान है. दिस इज द गिल्टी लाइक. जो जब अपने आप को देखता है मतलब मिरर को देखना मतलब अपना ही दर्पण देख रहा है. हम जब नाइट्रम देखता है तो उसको लगता है कि ये क्या है, लुकिंग रेज, भूतनी जैसे. जनरल्स नाइट्रम का देखा है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइड है, सन हीट एग्रेवेशन है, साल्ट, थर्स्टी है ना. रिलेशनशिप ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाइट्रम का रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री एपिस, बिफोर एंड आफ्टर. और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इग्निशिया भी. नाइट्रम इज क्रोनिक ऑफ इग्निशिया व्हिच इज विजिटेड बाय एनालॉग comparison, emaciation. Right, so this is the Natrum-mur. We have seen the Natrum group understanding. We have seen the theme of the Natrum-mur, feeling of Natrum-mur, miasmatic analysis. In short हम देखेंगे Natrum-sulph. In short देखेंगे इसका feeling क्या है Natrum-sulph का. The main feeling of the Natrum-sulph is I am scorned, I am reprimanded, scorned, scolded, disgraced or insulted, or I'm not getting appreciated by the person with whom I have a relationship and must make a I have a relationship. मतलब मुझे डांट मिल रही है, मुझे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, मुझे इंसल्ट हो रहा है या मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, जिससे जिसपे मैं मेरे रिलेशनशिप है, जिससे लव है. बराबर है कि नहीं. ऑन होम आई हैव अ रिलेशनशिप एंड इसके लिए वो एफर्ट्स करती है कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे अच्छा बोले. एंड फॉर दैट दे गेट अ एफर्ट, दे टेक अ एफर्ट टू गेन द अप्रिसिएशन और टू बी वैल्यूड बाय द फैमिली पीपल. सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फीलिंग. We can understand, if you understand this feeling, you can correlate this with the patient core of the mind core. बराबर है. तो ये नाइट्रम सल्फ का कोर रहता है. And in order to appreciate it or recognized by other people in a relationship, Natrum person becomes very industrious and do their hard work. They care for other and they are highly responsible people, highly helpful people. That's why the sense of responsibility to the Natrum self is very, very strong. Try to understand this. That's why if you see the picture like जैसे आता है एक आदमी आता है जो 40-42 साल का है, 45 साल का है. अगर आप उसको हिस्ट्री पूछेंगे, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैमिली में कौन है फैमिली. तो आप बताएंगे 2 भाई थे, एक बहन थी, दोनों भाई को पढ़ाया उसने, उनकी शादी की, है ना. उस बचपन से, क्योंकि फादर अर्ली एज में ही डेथ हो गया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आया था क्योंकि ये एल्डर है. बहन को भी पढ़ाया, बहन की भी शादी की, और सबका करते करते अभी उसका उम्र 40-45 हो गया. अभी इसकी शादी बाकी. द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नाइट्रम सल. Another remedy is the carcinosin. No other remedy in the whole matramedica having this sense of responsibility. तो ऐसे आपको पिक्चर मिल सकता है. तो थिंक ऑफ द नाइट्रम सल्फ. But when get depressed, when gets hurt, when sensitivity getting hurt, they easily go into the depression and even the suicidal thought and suicidal disposition. ये नाइट्रम सल्फ का ज्यादा स्पेशलिटी. जो बाकी नाइट्रम के ग्रुप के जो शेड्स है वो इजीली सुसाइडल टेंडेंसी में नहीं जाते, सुसाइडल थॉट में नहीं जाते, बहुत ज्यादा मेलानोकोली में नहीं जाते. ये क्या है, सिंस द मेक द लॉट ऑफ इफोर्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, रिलेशनशिप रहना चाहिए, इसके लिए काफी एफर्ट्स करता है. उसके लिए वो सप्रेस भी हो जाता है, अपनी इमोशन को सप्रेस करता है, डोमिनेट भी हो जाता है दूसरों से, क्योंकि उसको रिलेशनशिप रखना है, उसको उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है, जो आपको नाइट्रम म्यूर में नहीं मिलेगी. बट व्हेन द रिलेशनशिप, इतना एफर्ट्स करने के बाद भी रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल नहीं होती है
So they goes into the deep sadness and become highly melancholic, which is unexpressed and which is internal. And then it turns into the suicidal thought. That's why you get the rubric sadness with suicidal disposition. See the differentiating point, though the nitrum group is there, but when there is a element self is attaching, है ना, सेल्फ अटैच होता है, तो नाइट्रम सेल्फ जब बनता है तो शेड्स उसके चेंज हो रहे हैं, सेंसिटिविटी सेम है लगे. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, तो इट इज नॉट ओनली टू द फैमिली, बट अगर जॉब भी कर रहा है तो सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि काली में रहता है, औरम में रहता है, नाजा में रहता है. दिस पीपल्स आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली. जो जॉब है, जो काम है, एकदम परफेक्टली है, वो समय पे करके देंगे. पर नहीं, जो पोस्टपोन करने कल करेंगे वैसे वो तो लेजी इंडोलेंस रहेंगे, जो नाइट्रम सबके बहुत दूर रहेंगे. दिस पीपल्स आर वेरी डाउन टू अर्थ, sensitive but close, love for family, very attached or strongly attached to others, strongly attached to family. The another remedy is the carcinosin, strongly attached to others. That's why जब betrayed होता है, disappoint होता है, या relationship में वो कोई ये करता है, betray करता है, तो problem start हो जाता है. Objective, realistic, always adhere to the matter of practical, cheerful after stool patient. This natrum cell patient always having the gastric complaint or even the constipation. So when they get constipated but pass stool, anyhow, patient feels better. They become cheerful after stool, passing stool. So this responsibility, strong family toward this is the single remedy rubric, natrum self. These peoples are even very close, serious, gets aggravated, sadness get aggravated by music, gets easily into depression, very sensitive to noise. Hatred feeling you can see even in the natrum self, suspicious, having the suicidal thought or suicidal impulse, getting indifferent. They have the feeling that they peoples have succeeds never. This is the one of the symptoms in the natrum self. Delusion unworthy to live, मतलब ये जिंदगी जीने की अभी कुछ भी उसको, ये अभी कुछ वैल्यू नहीं है, या वो जो कर रहा है उसकी उसको वैल्यू नहीं मिली. दो दो भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, पर कोई उसको पूछ नहीं रहा है. द रिलेशनशिप बिकम्स अनसक्सेसफुल, कोई पूछ नहीं रहा है. अरे इतना किया मैंने उन लोगों के लिए, अब सैक्रिफाइस किया मैंने, शादी नहीं किया, शादी इतना लेट किया, बच्चों की तरह पढ़ाया, पर कोई दूर चले गए, तो गोज इनटू द मेलानोकोली. तब डिल्यूजन फॉर्म हो सकता है. इट इज अनवर्दी टू लाइफ, जीने अभी जीना ही नहीं है, अभी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है. सो दिस इज द natrum self, right? So guys, the people, our group members, I think this is enough to understand the natrum natrum self, because the time is over, it is difficult to continue, right? I think take a lot of things from this, learn from this and apply this. जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगी. आपके पास अभी इंफॉर्मेशन है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, पर आपको अपने एक्सपीरियंस में उसको कन्वर्ट करना है. नाइट्रम ग्रुप को और जो भी है नाइट्रम आर्स, ये वो सब पढ़िए. अगर आपको लगता है कि डाटा चाहिए, है ना, नाइट्रम आर्स भी समझना है, तो मुझे वो मटेरियल चाहिए नाइट्रम आर्स का या नाइट्रम आयोड का या नाइट्रम सल्फ का, तो आई विल शेयर यू, नॉट दिस पावर पॉइंट, पर मैंने मैथमेटिक एनालिसिस, मेरा ये है कि सब रेमेडी का मैथमेटिक एनालिसिस किया है. कोई एक रेमेडी चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन लाइक दिस नाइट्रम सल्फ. ये देखो इसको आप देख रहे होंगे, तो सोरिक नाइट्रम, दिस इज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सोरिक है, ये साइकोटिक है बीच का, और ये सिफिलिटिक है. क्या है सिफिलिटिक? सुसाइडल थॉट, स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली मेंबर. मतलब वो कन्वर्ट कैसे होता है, पहले तो स्ट्रांगली अटैच था, पर अभी सिफिलिटिक स्टेट में जब जाता है तो स्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर, स्ट्रेंज फ्रॉम हिज वाइफ. मतलब इट इज लाइक इंडिफरेंस,
great prostration of mind, indifferent feeling, hysterical. These are the syphilitic state of mind of the natrum self. कहाँ पे एफिनिटी देखो, ऑक्सीपिड ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, लाइक यहाँ पे एफिनिटी। एलिमेंट्स फ्रॉम देखो क्या है, damp, rainy weather, cloudy weather से aggravation है। तो you can even split the symptoms into this, analyze the symptom into the different heading. This is a good way to understand any remedy, right? So I think this is enough for today's session. Might be I will take the another group study in the next session, because this is also important. Only the case and case working is not enough, right? So be ready for next session with another group study. Thank you very much. If anyone have the query or want to ask the question, please feel free to ask. So thank you very much.